मैं हूं आपके साथ ऋतु रानी। दोस्तों, पैनल चर्चा का आज का हमारा विषय इंडिया एट 75 कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस टू बहुसंख्यक समाज। और इस विषय पर बातचीत करने स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे पहले वक्ता कुमार सुप्रवीण जी, आप आईआईटी दिल्ली से बीटेक और पीएचडी हैं, साथ ही साथ जाने माने गणितज्ञ भी हैं। आप 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं हरियाणा कैडर से। सर, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। हमारे दूसरे वक्ता मिस्टर आरएस चौहान जी हैं। सर, आप रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, यूटी कैडर से हैं और सर समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आप प्रेसिडेंट हैं। चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। हमारे तीसरे वक्ता डॉक्टर रामाशंकर कुशवाहा जी हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पे कार्यरत है। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। और हमारे चौथे वक्ता जमील साहब जी, सर आप वरिष्ठ जाने माने मीडिया कर्मी हैं, आपका चर्चा में स्वागत। जी आदाब। साथियों, जब हम संवैधानिक न्याय की बात करते हैं तो हमें संविधान की प्रस्तावना को नहीं भूलना चाहिए। हम जब संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्दों को देखते हैं तो उसमें न्याय की बात है, उसमें स्वतंत्रता की बात है, उसमें अभिव्यक्ति की बात है, उसमें आज़ादी की और अवसर की बात है। लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत में बहुसंख्यक समाज को उसका न्याय मिल पाया है? क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मामलों में समानता उसे मिल पाई है? उच्च शिक्षण संस्थाओं से लेकर नौकरियों, पेशों में, सरकारी महकमों में उसकी कितनी भागीदारी है? ये सभी गंभीर सवाल आज हमें एक तरह से झंझोर कर रख देते हैं, क्योंकि हम आज आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। लेकिन बेहद दुख के साथ हम कह रहे हैं कि हमारा भारतीय समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। और इन्हीं सभी जो गहन मुद्दे हैं, जो विषय है, चाहे वो छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध के विकास, उसकी पीड़ा, उसकी समस्याओं को लेकर हैं, इन पर हम आज अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनके विचार। हम सीधे चलते हैं मानव सुप्रवीण जी के पास। जी सर। थैंक यू टू द वॉइस ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस। Constitution is a law of the land, and this justice, starting from the times of the great Mahatma Buddha, followed by the Mauryan dynasty, headed by the king Samrat Ashok Maurya, and then Jyotiba Phule, Ramaswamy Naicker, and finally to Dr. Bhimrao Ambedkar, who gave us the Constitution on 26 January 1950. The preamble of the Constitution is the mirror of the Constitution, and Article 16(4) of the Constitution, Article 19 of the Constitution, and various other articles ensure justice for the people, especially to the scheduled castes, scheduled tribes, and the other backward classes. The preamble of the Constitution deals with the three critical ingredients of justice: justice political, justice economic, and justice social. I would like to focus my attention on political justice. Now let us look at the three pillars of government: the executive, the legislative, and the judiciary. Further, the fourth pillar of a democracy is the press. Let us look how much representation do we have in these pillars. When we talk of the political pillar, that is by the Lok Sabha, Rajya Sabha at the central level, and by the state legislatures. Simply looking at the Lok Sabha, 545 members, 60% of the OBC population, that comes out to 325 seats which should have been there for OBC. And looking at 90% of the SC, ST and OBC combined population, that should come around to something around 450. But do we have that much of representation? That is the moot question that we need to ask ourselves. Similarly, looking at the executive, 45 cabinet ministers, 60% OBC population, do we have 27 ministers?
90% of OBC, SC, ST population, do we have so many, around 40 ministers from these categories combined together? We do not have. Similarly, the judiciary, so many judges, do we have the composition anywhere even around 50%? We do not have. So we have to ask these questions to ourselves, and if in a democratic spirit we have to question these things, whether how do we approach these things. Even in the press, the media houses, are how much representation these SC, ST, OBC people have. So these are the questions that we need to ask ourselves. Then only we can actually realize the goal of equality, the goal of equality before law, the goal of equal protection before law, that every citizen, howsoever poor, should get the equal protection as the rich. धन्यवाद सुप्रवीण जी। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मिस्टर RS चौहान जी से उनके विचार। थैंक यू रुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके चैनल का कि आपने इतना इम्पोर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक जो लिया है, संवैधानिक न्याय। ये हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल में सब कुछ शामिल है। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के आधार पर संविधान की जो आत्मा है प्रीएम्बल, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन सामाजिक जस्टिस के नाम पर हमारा भी अचीवमेंट अगर गिनाएं तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन फेल्योर इतना है कि वो सब नगण्य है, बहुत ज़्यादा फेल्योर है। इतना दुख दर्द वाली बात है कि एक दो जख्म नहीं, जिसमें सारा जिस्म छलनी है और दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से निकलूं। और जिन्हें ज़मीन पर भी रहने का शऊर नहीं, उनका इरादा है कि आसमान ले लूं। अब दिक्कत ये है कि सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो उससे ज़्यादा अन्याय की बात हमारे सामने आती है। अनटचेबिलिटी को संविधान ने अलग कर दिया, बिल्कुल रिमूव कर दिया। लेकिन धरातल पर देखें तो अनटचेबिलिटी जाति और रंग भेद या नीति, कास्ट, क्रीड और रीजन और रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन इन्हीं के आधार पर खूब डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं कितने ही इंसिडेंट हैं आज भी जाति के नाम पर। स्कूल में भी बच्चों को खाने के बर्तन अलग हैं, इतना आए दिन मिलता है हमको सुनने को। दूल्हे को घोड़े से जाति के नाम पे उतारा जाता है, जाति धर्म के नाम पे इवन महामहिम राष्ट्रपति को भी सीढ़ियों पे पूजा करा दी जाती है। जाति के नाम पर क्या क्या अन्याय नहीं होता है। जाति धर्म के नाम पर लिंचिंग भी होता है। ये सब इतना सुनने को मिल रहा है, अनगिनत हैं। इवन हाथरस की घटना देखें तो जाति के एक नीची ही जाति जिसको मानते हैं, पुलिस ज़बरदस्ती उसका रात्रि में अंतिम संस्कार कर देती है। तो ये न्याय कहाँ से हुआ? ये इतना बड़ा अन्याय हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा साथ न्याय को तो गिनने का बिल्कुल है ही नहीं, कुछ भी गिनाने को कि न्याय कहाँ है। तो अन्याय मैं तो कहूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल आए दिन हम देखने को मिल रहा है। अगर एक चुनी हुई सरपंच है, उसको सभा में कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जाता, उठा देते हैं, ऐसा समाचार भी हमारे सामने आता है और रोज़ आ रहा है। तो ये इसमें समय देखने का ज़रूरत है। मेरा मानना है कि संवैधानिक न्याय तभी मिलेगा जब हमें ये सामाजिक रूप से शामिल करें। इसमें संविधान के हिसाब से हमको वो न्याय मिलना चाहिए, बराबरी मिलना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द आपका लॉ जो है होना चाहिए। अब है नहीं, तो बहुत ज़्यादा सुधार का ज़रूरत है मेरे हिसाब से। थैंक यू। शुक्रिया चौहान सर, आपने अपने वक्तव्य में बताया कि किस तरह से समाज अपने सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत है, उसको नहीं मिल पा रहा है। अगली चर्चा में हम बुलाते हैं अपने वक्ता डॉक्टर रामाशंकर कुशवाहा जी को और सुनते हैं उनके विचार। धन्यवाद ऋतु, आपने हमें इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल किया, और वॉइस ऑफ द पीपल का धन्यवाद कि आप लोगों ने इस
महत्वपूर्ण विषय पर एक चर्चा आयोजित की। देखिए ये सर हमारे जो दो पहले पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने बात की थी, मैं उसको एक तरह से आगे बढ़ा रहा हूँ आर्थिक मामलों पर, क्योंकि जो व्यवस्था है इसकी जड़ है अर्थ, सब जानते हैं, और आर्थिक रूप से विभाजन जो होना चाहिए था समानता को, समान अवसर के लिए, वो नहीं हुआ है। और उसमें दो हिस्से मैं शामिल करना चाहूँगा, एक निजीकरण और दूसरा जो है किसानी। अब देखिए पहला जो मामला ये है कि सरकार कितने % लोगों को नौकरी दे पाती है या देती है। आरक्षण के बाद भी आप देखिए कि बहुत कम प्रतिशत लोग उन नौकरियों में जा पाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेटाइजेशन के कारण टेंडर और बाकी चीज़ों में चला जा रहा। तो विद्वान मानते हैं कि 40 लाख करोड़ रुपए का लगभग हर साल टेंडर होता है, जिसका 10% भी शायद बहुजन लोगों को नहीं मिलता या बहुसंख्यक समाज को नहीं मिल पाता है। इसका कोई बहुत ऑथेंटिक आंकड़ा भी सरकार जारी नहीं करती, क्योंकि सरकार को खुद ही अपने कारनामों का पर्दाफाश होने की चिंता रहती है। तो उसमें आप अगर ठीक से देखना शुरू करें तो इतनी बड़ी धांधली है ये धांधली इस मामले में कि जहां आरक्षण नहीं है या जहां टेंडर की बात है, वहां ये सारे जो मुनाफे हैं या फायदे हैं या कार्यशैलियां हैं, वर्किंग पावर है, वो सब खास जाति या वर्ग के लोग ले जाते हैं। तो उसमें बहुसंख्यक समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और इतनी बड़ी पूंजी में क्या उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? ऐसे ही लोन में है, आप देख लीजिए जितना ये पैसा एनपीएस में जा रहा या ये छोटे छोटे बाकी खर्चों में जाता है या लॉस में जाता है, वो सारे में क्या इनकी कोई भागीदारी नहीं है? क्या इनको नहीं मिलना चाहिए? आज देखिए लोन का मैक्सिमम पैसा छोटे संगठनों को, कार्य करने वाले लोगों को या छोटे रोजगार वालों को नहीं मिलता, और ये सारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। ऐसे ही आप खेती किसानी की तरफ चल के देख लीजिए, बाजार जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, आमदनी बढ़ती गई, लोग उसका लाभ लेते गए, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि उसी रेशियो में खेती किसानी में आमदनी बढ़ी या उनका पैसा बढ़ा या उनके उत्पादक वस्तु की कीमत बढ़ी। जैसे अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि सरकार ने अभी 62 पैसे प्रति किलो गेहूं पर बढ़ाया है। क्या उसी हिसाब से बाजार में जो खुदरा व्यापारी हैं उनकी बढ़ोतरी हुई है? आप जाके देख लीजिए, 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। क्या ट्रांसपोर्टेशन और उसके प्रोसेसिंग के नाम पर 10 गुना वसूला जा सकता है? इस मामले में सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इसलिए कि ये जो पूंजी और व्यवस्था पर कब्जा किए हुए लोग हैं वो उसको बहुत बुरी तरह से लूट रहे, और जो उत्पादक वर्ग है, जो श्रमिक है, जो मैन्युफैक्चरर जिसे कहते हैं, वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रहा या उसकी आमदनी में उस तरह से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो यहाँ ज़रूरत है बैलेंस करने की, चीज़ों को समझने की, और आर्थिक रूप से समान वितरण हो ऐसी व्यवस्था कायम करने की, जिससे प्राइवेटाइजेशन, ठेकेदारी और बाकी सिस्टम में भी उनकी इक्वल भागीदारी साबित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपने बहुत बड़े विषय जो कि इकोनॉमिक से संबंधित है इस पर आपने चर्चा रखी, अपनी बात रखी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अपने चौथे वक्ता के पास, इसर जमील जी से, और जानते हैं उनके विचार इस विषय पर। शुक्रिया रितु जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस परिचर्चा में मुझे बुलाया। वॉइस ऑफ पीपल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जहाँ तक बात है और 75 बरस में हम कहाँ तक आए और हमें कितने अपने अधिकार मिल चुके हैं, वो अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। चौहान साहब ने अभी इस बात पे चर्चा की, सुपरवीन साहब ने पर चर्चा की, रमाशंकर जी ने भी बहुत सारे पहलुओं पर इस पर रोशनी डाली है। और इतना ज़्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का मौजू है कि इसमें 4 दिन तक भी अगर चर्चा की जाए तो कम है। मैं सिर्फ मोटा मोटा एक लुबुल आप कहना चाहता हूँ कि ये शिकायत हमको क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमको क्यों नहीं मिले। ये शिकायत ही नहीं होना चाहिए। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सीधा सीधा सबको सबके राइट्स मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 75 बरस के अंदर मेरा ये मानना है कि करीब सिर्फ शायद मेरे ख्याल से 2-4-5% ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अब तक अवेल हुए हैं, बाकी सब शिकायत का पुलिंदा बढ़ता ही जा रहा है। चौहान साहब ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा कि 1-2 जख्म नहीं जिसमें सारा छलनी, जिस्म बेचारा, दर्द बेचारा, परेशान कहाँ से निकले।
मुद्दे इतने हैं, शिकायतें इतनी हैं, समाज का कोई भी वर्ग अपने राइट्स को लेकर संतुष्ट नहीं है। समाज की कोई भी, और इकोनॉमी हो चाहे या नौकरियां हो, कोई भी चीज़ हो, आप देख लीजिए वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सरकारें हैं, जो पॉलिटिकली चुनी हुई सरकारें हैं, शायद मुझे लगता है उनकी विल पावर में हमेशा से खोट रहा है और वो ही अंदर से बेईमान रही हैं। वो चाहती तो सब कुछ होता, और इसका असर पिछड़े वर्ग पर हुआ है, SC ST पर हुआ है और OBC पर हुआ है। और खुले तौर पे मैं कहूँगा कि 90% लोग ऐसे हैं जो वांछित हैं आज तक 75 साल के अंदर अपने राइट से। तो सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो मैं तो अपने समाज से उससे बात करना चाहता हूँ, जो बहुसंख्यक समाज है, वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आगे आता? वो खुद क्यों नहीं खड़ा होता इंसाफ देने के लिए? इंसाफ लेने की ही बात क्यों करता है? शिकायत ही क्यों करता है? जब वो वोट से ही चुनता है सरकारें, तो आए, जागरूक हो, खड़ा हो और अपने वोट से अपने लोगों को चुने, अपनी सरकारों को चुने, ऐसे लोगों को चुने वो जो न्याय दे सकते हों। इसका मतलब ये जो तंत्र है 75 वर्ष में साबित हो चुका है कि ये न्याय नहीं दे सकता, तो इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने यहाँ मुझे बुलाया, मैंने अपनी सी बात लुब-लुआब सिर्फ यही कही, और एक शेर के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें ये गुत्थी को सुलझाना है। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ बुलाया। थैंक यू। शुक्रिया सर। इस तरह हम देखते हैं कि आज जो हमारा विषय था उस पर एक सार्थक चर्चा हमने की, जिसमें बहुसंख्यक समाज को संवैधानिक न्याय को लेकर बात हुई, और जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जो हक नहीं मिल पा रहा था, जो हकमारी हो रही थी, उस पर बहुत बड़ी चर्चा यहाँ हमें सुनने को मिली। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम भारतीय समाज की दशा, उसकी प्रकृति का विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो संसाधन है, जो सत्ता है, और जो कह सकते हैं जो पूंजीपति वर्ग है या जहाँ पूंजी संग्रहित है, वहाँ हम देखेंगे तो हम पाते हैं पिछड़ा समाज बिल्कुल बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। वहाँ भी हकमारी है, वहाँ सिर्फ चुनिंदा लोगों का ही कब्जा है। क्या आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम इस विषय पर बात करने के लिए मजबूर हैं? तो क्या यह उत्सव मनाने का समय है? हमें सोचना है और इस पर हमें मिलकर आगे आना है। मैं सभी अपने वक्ताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने स्टूडियो में आकर अपने विचार रखे। आप लोगों का शुक्रिया। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक खास विषय के साथ, अपने नए वक्ताओं के साथ। तब तक शुक्रिया, नमस्कार।